Hello everyone. Today, as I told you, we are going to start a video series on the subject income tax law and practice, which is taught in BCom and BBA courses. So today we will start the first topic, residential status and its effect on tax incidence. Right? Residential status and tax incidence. What is the relationship between these two? Tax incidence means the person's tax liability. The income is earned during the previous year is taxable in the next year. So income is earned from different sources is taxable in the next year, right? But how the residential status is playing a role in calculating the tax incidence of a person, right? So residential status, what is residential status? Residential status means in the previous year, how many days a person was staying in India. The stay in India will find out the residential status of a person. Person means individual, HUF, partnership firm, joint stock company, local authority or every other person, right? सो सबका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस मीन्स कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है. सो टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, वन इज रेजिडेंट इन इंडिया and second is non-resident in India. If a person is resident in India, then he is liable to pay tax on all types of income, whether it is foreign income or it is Indian income. So tax liability of resident of India increases more than in non-resident in India. And non-resident in India is liable to pay tax only on the income which is earned in India during the previous year. So resident in India is liable to pay tax on all types of income earned during the previous year in India as well as abroad, and non-resident in India is liable to pay tax on all the income earned only in India during the previous year. So this is the reason we are studying the residential status of a person before calculating the tax incidence, right? So resident is paying more tax, non-resident is paying lesser tax. So resident in India is category 1, non-resident in India category 2. So resident in India here we have categorized in two categories, two ways. दो तरीके से हमने resident को define किया, resident और non-resident. Now resident, who is the resident? As I told you that कि कितने दिन उसको इंडिया में वो रहा, how many days he was staying in India. So for that his or her stay in India, so condition first is that is called basic condition. Basic condition, we have two basic condition. First is when a person is in India for at least 180 days or more, या तो 182 दिन या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा, कब? प्रीवियस ईयर में. सेकेंड बेसिक कंडीशन, when the person was in India for 60 days in the previous year and for 60 days in the previous year and 365 days in the 4 previous preceding years. So one is 182 days and second is 60 days. 60 days plus 365 days in 4 preceding previous year. मीन्स प्रीवियस ईयर को छोड़कर प्रीवियस ईयर में कितने दिन उसको रहना है? 60 डेज. और प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल हैं, 4 ईयर्स हैं, उनमें उसको इंडिया में स्टे करना होगा 365 डेज. देन वी कैन से दिस इज द बेसिक कंडीशन. टू बेसिक कंडीशन, 182 दिन पिछले साल में और 60 डेज पिछले साल में प्लस 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. अब कोई भी पर्सन अगर एटलीस्ट एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट इन इंडिया. एनी ऑफ बेसिक कंडीशन इफ फुलफिल्ड बाय द person
then person is called resident in India. अगर दोनों कंडीशन पूरी करता है then it's okay, but we need at least one condition. अब रेजिडेंट भी क्या है, दो तरह के होते हैं. रेजिडेंट ऑफ टू टाइप्स. वन इज ordinarily resident and second is non-ordinarily. Ordinarily resident, non-ordinarily resident. Both are resident if they have fulfilled one basic condition, resident. But whether the person is ordinarily resident or non-ordinarily resident, so he needs to fulfill two additional conditions. Additional conditions. As I told you, resident is liable to pay more tax in comparison to the non-resident, as he has to pay tax on all types of income. He has to pay tax only on Indian income. So, what is the tax incidence difference between the ordinarily resident or non-ordinarily resident? Ordinarily resident pay higher taxes, means all types of income, and non-ordinarily resident is exempt from certain incomes, right? So, tax liability is lower in case of RNOR. We call it RNOR, and this one is ROR. ROR means resident and ordinarily resident. RNOR resident but not ordinarily resident, right? तो वो किसी भी पर्सन को हम ROR कहें या RNOR कहें, वो किस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं. तो उसके लिए हमारे पास वी हैव टू मोर एडिशनल कंडीशंस. वन इज द पर्सन वाज इन इंडिया as a resident 2 out of 10 years in preceding previous year. प्रीवियस ईयर को छोड़कर, प्रीवियस ईयर की हमारी दो कंडीशंस हैं, 182 डेज या फिर 60 डेज, उसको छोड़ दो. प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं, उन 10 सालों में से 2 साल एज ए रेजिडेंट वो रहा. वन एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन. दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है? 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. मीन्स प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग जो 7 साल हैं, उनमें वो 730 दिन इंडिया में रहा. 730 दिन. यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि एज ए रेजिडेंट रहा या क्या रहा. 730 दिन काउंटेड, ठीक है. 730 दिन या उससे ज्यादा रहा. कितने दिनों में? 7 सालों में, राइट. पहली कंडीशन 10 साल में से 2 साल एज ए रेजिडेंट, मतलब 182 दिन कम से कम दोनों साल. और दूसरी कंडीशन 7 सालों में 730 दिन अगर वो इंडिया में रहा. अब ROR कब बोलेंगे उसको? When we say the person is ROR, ordinarily resident, when he fulfills both the conditions. When he fulfills दोनों कंडीशन, both conditions, he is called ROR. When he doesn't fulfill one additional condition या फिर कोई भी नहीं, तो वो RNOR, because resident he is already resident, he is under the category of residents. तो resident क्या है? वो ordinarily है, तो दोनों एडिशनल कंडीशंस उसको फुलफिल करनी है. और अगर वो दोनों नहीं करता है, if he fulfills both the additional conditions, ROR. If he doesn't fulfill both the additional conditions, he is RNOR, right? So these are the conditions for the ROR or RNOR. Let's take an example. A person comes to India, पहली बार इंडिया में आता है for the first time on April, example है ये, April 16, 2020 को मिस्टर श्याम इंडिया में आते हैं, ठीक है. 16 अप्रैल 2020 को आते हैं. हिज स्टे अप टू कब तक रहते हैं वो? अप टू अक्टूबर 5, 2022, ठीक है. 16 अप्रैल 2020 से 5 अक्टूबर 2022 तक वो इंडिया में रहते हैं.
तो अभी हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, ठीक है, क्या वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट है तो ROR है या नहीं, या RNOR है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट एज आई टोल्ड यू, जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है, जो एक कर लेता दोनों में से तो रेजिडेंट बन जाता है, अगर दोनों में से एक भी नहीं करता है तो वो क्या है, फिर नॉन रेजिडेंट है। तो मिस्टर श्याम का अब रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। तो अप्रैल 16 को वो इंडिया में आए 2020, और अक्टूबर 5 2022 तक वो इंडिया में रहे। तो प्रीवियस असेसमेंट ईयर है हमारा, असेसमेंट ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। इस प्रीवियस ईयर 2023 के दौरान मिस्टर श्याम का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 22-23, वो इंडिया में आए अप्रैल 20, तो 2 साल वो इंडिया में रहे। कौन कौन से 2 साल, 2020 और 21 इंडिया में रहे एज ए रेजिडेंट। कितने दिन रहे, अप्रैल 16 से 31 मार्च तक, इट्स मोर देन 182 डेज। देन अप 1 अप्रैल 21 टू 5 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो इट इज टोटल डेज in the this is the previous year, this one is the previous year 21-22. So he stays in India total up to first 22-23, 22 तक रहे ना वो, 22-23। तो एक और है उसका, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, देन 1 अप्रैल 22 टू 5 अक्टूबर 23। ये 3 साल है हमारे पास, राइट। इन 2 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक उसके डेज बनते हैं 188 डेज। वो इंडिया में कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में, 188 दिन। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 182 डेज। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 182 डेज। वो कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में, 188। तो इज द रेजिडेंट, मिस्टर श्याम इज द रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो रेजिडेंट तो वो हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली। इसके लिए हमें क्या देखना होगा, 2 एडिशनल कंडीशंस। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो ROR, अगर वो दोनों नहीं करता है तो वो RNOR, राइट। तो अभी देखिए, फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आया अप्रैल 16 22 को, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 1 साल एज ए रेजिडेंट, दूसरा साल एज ए रेजिडेंट, तो ही फुलफिल्स द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। ही इज इन इंडिया 2 out of 10 years इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर है और ये दोनों क्या है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 2 साल, राइट। आउट ऑफ 10 2 साल इज इन इंडिया एज ए रेजिडेंट। तो ही उसने पूरी कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी है। दूसरी है 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया ही इंडिया में 2022 को है, तो वो दूसरी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक एडिशनल कंडीशन पूरी करने, ROR बनने के लिए दोनों कंडीशंस पूरी करना होता है। उसने क्या किया, एक कंडीशन पूरी की है, तो उसका स्टेटस क्या हुआ फिर, ही इज ए रेजिडेंट इन इंडिया एज पर दिस कंडीशन, बट ही इज ए RNOR एज पर एडिशनल कंडीशन, राइट। तो मिस्टर श्याम इज अ RNOR इन द प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो नाउ let us illustrate something else, some exceptions. Let's go to the basic condition. Basic condition is 182 days in previous year, 60 days in previous year, plus 365 days in 4 preceding previous year, right. RNOR is coming under section 6(1) or 6
6, right? This is RNOR under this section. ठीक है, अब जो 60 days हैं, we have some exceptions in that. There is कुछ some situation, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ सिचुएशन है जिसमें जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसमें कुछ अपवाद हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. वो क्या है कि प्रीवियस ईयर में एक पर्सन को इंस्टेड ऑफ 60 days ही नीड्स टू स्टे 182 days. ये उसका एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है कि 60 दिन की बजाय उसको 182 days इंडिया में रहना पड़ेगा. ठीक है, तो वो किस परिस्थिति में रहना पड़ेगा उसको? अंडर सेक्शन 61A और दूसरा है अंडर सेक्शन 61B. ठीक है, ये 61 के अंडर चल रहा है. 61A एंड 61B इसके एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? 60 डेज की जगह उसको इंडिया में 182 डेज रहना होगा. तो उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसमें चेंज हो गया है. ठीक है, तो वो कब रहना पड़ेगा, किस केस में रहना पड़ेगा? 61A में देखो, अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है या फिर वो किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है. ठीक है, तो इंडियन शिप है तो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बाहर जाते हैं. दे लीव द इंडियन कोस्ट, इंडियन बॉर्डर एंड गो टू द अदर बॉर्डर्स, अदर कंट्रीज. तो उन लोगों के लिए दो तरह के, क्रू मैन इन ए शिप और द पर्सन हु इज गोइंग फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. For those two type of people, the section 61A applies and that person needs to stay 182 days in the previous year instead of 60 days. Instead of 60 days, right? और दूसरा क्या है? 61B में क्या है? The person of Indian origin. Person of Indian origin, PIO बोलते हैं जिसको, वो इंडिया में विजिट करता है. ठीक है, इंडिया में रहता है. तो इंडिया में रहता है एज पर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस वी फाइंड आउट वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. सो इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 60 days ही नीड्स टू स्टे 182 days. ठीक है, दो लोग, फर्स्ट कैटेगरी 61A फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एंड क्रू मैन in a Indian ship. दूसरा, when the person is of Indian origin visits India during the previous year, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ 60 days 182 days इंडिया में रहना जरूरी. तो बेसिक कंडीशन के ये दो एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन मतलब कि 61 हमें बताती है कि RNOR क्या होता है. उस RNOR का ये एक्सटेंशन है कि 61A और 61B इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट? ठीक है, नाउ वन मोर सेक्शन 61A. 61A was introduced in the assessment year of 21-22. In the assessment year of 21-22, जिसने हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस, एक बेसिक कंडीशन की पूरी डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया. कैसे चेंज किया? हमने क्या कहा फर्स्ट टाइम? द पर्सन हु फुलफिल्स एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन. What we said? A person who fulfills any of the basic condition is a resident in India, right? दोनों में से कोई भी एक करता है, या तो पिछले साल 182 days इंडिया में रहता है या फिर 60 days plus 365 days in 4 preceding previous year. तो ये सेक्शन क्या कहा इसने? The person who doesn't fulfill any of the basic condition is also is or can be ए रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, जो कि एक भी बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं करता है वो भी इंडिया में रेजिडेंट माना जा सकता है. उसके हमारे पास ये एक अमेंडमेंट है, दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट. और इसका सेक्शन नया आया 61A फ्रॉम द दिस ईयर. तो ये क्या कहता है? फर्स्ट, जो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है. कौन? हु इज दैट? Indian citizen. First thing is he is Indian citizen. An Indian citizen who doesn't fulfill any of the basic condition and his Indian income exceeds rupees 15 lakh. उसकी जो इंडियन इनकम है वो कितनी है?
15 लाख या उससे ज़्यादा है, नॉट हैविंग ए स्टे either of 182 days or 60 days plus 365 days in the 4 preceding previous year, right? So without even fulfilling any of the basic condition, just on the basis of his Indian income that exceeds rupees 15 lakh, that person can be called as a resident in India in the previous year, right? One more thing, Indian citizen है वो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है। तीसरा, उसकी जो इनकम है, इंडियन इनकम है, वो 15 लाख से ज़्यादा है। एंड फोर्थ इज ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री बीइंग ए कैपेसिटी ऑफ डोमिसाइल और सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, राइट? तो उसके लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, 15 लाख इनकम होना जरूरी है, और उसकी किसी और कंट्री में टैक्स लायबिलिटी बीइंग ए डोमिसाइल ऑफ दैट कंट्री नहीं है। तो सेक्शन 6(1)(a) provisions apply on that person, and that person is considered as a resident of India, obviously RNOR of India, or we can call it deemed resident. But we call it deemed resident, who is not a resident but treated as a resident in India. Now second one, under this same section 6(1)(a), second thing, the person doesn't need to be Indian citizen. He can be a person of Indian origin. He can be a person of Indian origin. अगर वो इंडियन origin का पर्सन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, और कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन वो पूरी नहीं करता है, उसकी इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है इंडियन इनकम, तो ही इज ऑल्सो ए डीम्ड रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो उसके केस में doesn't fulfill any of the basic condition, person of Indian origin, visits India during the previous year, and his income is 15 lakh or more than that. So despite of not fulfilling any of the basic condition, हमने देखा कि कैसे एक पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट बन सकता है, ठीक है? तो ये इसका स्पेशल अमेंडमेंट था 6(1)(a) के अंडर। आगे से हम जो भी क्वेश्चंस जो भी करेंगे इसके अनुसार ही पढ़ेंगे कि एक रेजिडेंट कौन होता है। तो जब हम रेजिडेंट की डेफिनेशन करेंगे, जैसे कि हमने की थी बेसिक कंडीशन और ये, तो साथ ही उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शंस करेंगे। सी वन मोर थिंग इज देयर हियर 6(1)(a) अंडर, फर्स्ट जो इंडियन सिटीजन है उसको इंडिया में एक भी दिन नहीं रहना है, ठीक है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन में, दूसरी बेसिक कंडीशन में भी नहीं रहना है। पर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की हमने जो बात की थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको प्रीवियस ईयर में वो कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है, मतलब कि वो 182 डेज इंडिया में नहीं रहता है, बट उसको इंडिया में वो विजिट के लिए आता है। ऑब्वियसली जब विजिट के लिए आया है तो उसको मिनिमम 120 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। तो ना तो उसको 60 डेज रहना, ना 182 डेज रहना, उसके लिए एक नया रूल आया, क्या कि उसको 120 दिन इंडिया में रहना है अंडर सेक्शन 6(1)(a). किसको? जिसकी इनकम इंडिया में ड्यूरिंग हिज स्टे इज मोर देन 15 लाख। इसमें हम इनकी फॉरेन इनकम को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ इंडियन इनकम के बेसिस पे देखते हैं। और जो रेजिडेंट है, ROR है, उसकी फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। जो RNOR है उसकी इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, एक्सेप्ट एज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास टैक्स इंसिडेंस, जिसमें ROR की टैक्स लाइबिलिटी किस किस केस में है, RNOR की किस में है और नॉन रेजिडेंट की किस में है, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन RNOR एंड NRI। सो लेट अस समराइज द रूल्स जो हमने अब तक किए। Why we are studying residential status? Because of the tax liability. एक रेजिडेंट है उसकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, एक जो नॉन रेजिडेंट है उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। इसलिए हमें पता लगाना पड़ता है कि एक पर्सन है जो टैक्स पेयर है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब जो रेजिडेंट्स हैं वो भी 4 तरह के होते हैं, और रेजिडेंट, ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और डीम्ड रेजिडेंट। इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए हमें 4 कैटेगरीज, ROR, RNOR, डीम्ड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है? ये चीज़ है एक। तीसरा 6(1)(a) असेसमेंट ईयर 21-22 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंडर किसी पर्सन को एक भी बेसिक कंडीशन पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी वो इंडिया में रेजिडेंट हो सकता है, राइट? तो एक हमने एग्जाम्पल किया जिससे हमें पता चला
कि प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहा, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट, अब रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद एन एग्जाम्पल। सो बाय फॉर नाउ।